So hello students, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and I also hope that you are preparing well for your upcoming exam, that is Haryana Civil Services Examination 2023 or you can say 2024, right? So last session mein we have discussed idioms and phrases. I hope that you have watched that particular video and I hope that you have noted down all the important idioms that you don't know. And in this video we will discuss some other important idioms and phrases which will help in your examination. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली आते हैं तब भी आपको वो हेल्प करेंगे, अगर आपको वो कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं तो इन दैट वे ऑल्सो दीज idioms एंड phrases will help you, राइट? तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस आज के सेशन को पार्ट 2 रहने वाला है idioms एंड phrases का। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन I would like to give you information about Abhyas 2.0 which has been launched, and in this particular course you will get all the classes for your जो भी subjects हैं आपके, in online classes होंगी आपकी, offline classes भी होंगी, and also if you are interested you can join the offline classes as well, right? 75 days की classes रहेंगी। Further I will be telling in the end of the session, okay? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन। फर्स्ट इडियम इज रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ये आपको लास्ट सेशन में भी इडियम मिला था। ठीक है, आई बिलीव इन रेपिटेशन बिकॉज दैट्स द ओनली वे इन विच यू कैन रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो repetition is very important when it comes to vocabulary, idioms and phrases, one word substitution. Okay, all these things need a regular or proper revision, right? So read between the lines इसका मतलब होता है to understand the hidden meaning, right? और next one is a man in the street. A man in the street इसका मतलब क्या होता है? An ordinary person or you can say common man, right? An ordinary person or common man, इसका ये मतलब होता है। ओके, फिर देखिए थर्ड वन इज ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लड running cold. What's the meaning of this? Become very frightened. Become very frightened. और now what will I do in this particular session? फटाफट से जब मैं आपको एक बार करवाऊंगा, लास्ट में फिर से क्विक रिकैप करेंगे, राइट? आपको मैं बोलता चलूंगा, आपको बस सुनना है इस वीडियो को, ठीक है? ओके, ब्लड रनिंग कोल्ड, बिकमिंग या बिकम वेरी फ्राइटेंड। ठीक है, एकदम खून ठंडा हो जाना मतलब डर जाना, राइट? नेक्स्ट वन इज प्लेइंग टू द गैलरी। Now playing to the gallery का मतलब क्या होता है? Be fooling the common man. Okay, playing to the gallery. ठीक है, playing to the gallery, be fooling the common man. Okay, किसी को मूर्ख बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना। Come out of one's shell. I hope you know the meaning of this particular idiom. Come out of one's shell, it means to appear suddenly. To appear suddenly. The next one is lay down arms. Lay down arms, it means to surrender. अपने हथियार डाल देना, ठीक है? इट मीन्स टू सरेंडर। ओके, मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। ठीक है, मेकिंग हे काइंड ऑफ इट मीन्स यू आर सेइंग कि कुटिया बनाना है ना, पुराने टाइम में होती थी ना घास से बनी हुई कुटिया। सो मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स इट मीन्स जब दिन निकला हुआ है तो अपने अपने काम में लग जाना और अपने काम को पूरा कर लेना। दैट मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या फिर कंडीशन। टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या फिर कंडीशन। ओके, मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट वन इज ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट। अपनी शहनाई बजाना, ठीक है, या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इट मींस टू प्रेज वनसेल्फ, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब वो हाथी वाली है ना, ठीक है, या शहनाई बोल सकते हो आप ट्रम्पेट को। ओके, नेक्स्ट वन इज टू टेक टू वंस हील। वेरी इंपॉर्टेंट। To take to one's heel, it means to run away. To take to one's heel, it means to run away. To turn a deaf ear, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कान पर जू ना रेंगना। It means to be indifferent. Indifferent का मतलब जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी सिचुएशन का, राइट? न्यूट्रल रहना, ठीक है, न्यूट्रल रहना उसको बोलते हैं indifferent. ओके, at snail space। अब स्नेल कैसे चलती है? काफी ज्यादा
स्नेल मतलब काफी ज्यादा स्लो, राइट? तो एट स्नेल पेस मतलब कि काफी ज्यादा स्लो चलना, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है? फिर आता है टू रन वन डाउन, ठीक है? टू रन, एक मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था टू रन अक्रॉस, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? टू रन अक्रॉस, बताइए। टू टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, ओके? ये होता है टू रन वन डाउन का मतलब, सॉरी, टू रन अक्रॉस। और टू रन वन डाउन इट मींस टू डिस्पैरेज समवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज? डिस्पैरेज का मतलब कोई बताएगा? द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी डिसरिस्पेक्ट, ओके? डिस्पैरेज का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? The meaning for the same would be disrespect. The next one, to face the music. To face the music, it means to get reprimanded या फिर to bear the consequence. ठीक है? To face the music, इसका मतलब कि जो खुद बोया उसको काटना, राइट? ऐसे समझ लो। और इसके दो मीनिंग होते हैं, to bear the consequences या फिर to get reprimanded. Reprimanded का मतलब होता है डांट फटकार सुनना, ठीक है? रेप्रीमांड का मतलब होता है डांट फटकार, टू गेट रेप्रीमांडेड या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। बोथ आर द मीनिंग्स ऑफ दिस इडियम, दैट इज टू फेस द म्यूजिक। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क, ठीक है? अब ये मत सोचना इस चीज से कि किसी को काम पर लगाना, राइट? दिस इज नॉट द मीनिंग। इसका मतलब होता है टू टेक समवन टू टास्क, मतलब जैसे हम छोटे होते थे, ठीक है? सो पेरेंट्स यूज टू टेक आवर क्लास, राइट? कि आज तो भाई हमारी क्लास लगेगी, इट मींस कि आज हमें गालियां पड़ेंगी, डांट फटकार पड़ेगी, ठीक है? उस केस में हम बोलते हैं टू टेक समवन टू टास्क, टू स्कोल्ड समवन या फिर टू रेप्रीमांड। आई टोल्ड यू रेप्रीमांड का मतलब ही होता है स्कोल्ड, ठीक है ना? टू स्कोल्ड समवन, ओके? द नेक्स्ट वन इज एट वंस विट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एट वंस विट। जो विट होती है ना, WIT, इसका मतलब होता है हमारे ब्रेन, मतलब दिमाग, सोचने समझने वाले जो ब्रेन का जो पार्ट होता है उससे इसका रिलेशन होता है, विट, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कॉग्निजेंस, राइट? इसको मैं इरेज करता हूं, इसको समझना। कॉग्निजेंस, इसका मतलब होता है यू कैन से कंसाइंस, ठीक है? विवेक जिसको बोलते हैं, कंसाइंस, ठीक है? पता है विवेक, विवेक मतलब हमारी सोचने समझने की शक्ति, ठीक है? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, है ना? इसको विट भी बोलते हैं कई बार, और यहीं से ये हमारा इडियम आता है, विट। एट वंस विट मतलब बिल्कुल विट के एकदम एंड तक चले जाना, सोचते सोचते किसी चीज को। वैसे इसका होगा एट वंस विट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एट वंस विट्स एंड, कि एकदम सोचने समझने की बिल्कुल एक्सट्रीम तक चले गए हो आप। इसका मतलब कि आप कंफ्यूज्ड हो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, राइट? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है? इट मींस यू आर कंफ्यूज्ड। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से एट वंस विट या फिर एट वंस विट्स एंड, ओके? और इसका मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। परप्लेक्स काफी अच्छा एक वोकेबलरी का भी वर्ड है, और इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है? और एक इसी से सिमिलर हमारा एक इडियम है, एट सी, एट सी, ठीक है? और इसका भी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है? एट सी, इसका भी मतलब होता है ये परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, केओटिक, ठीक है? समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखिए फिर, बियर विद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। किसी को सपोर्ट करना या किसी को टॉलरेट करना, टू बी पेशेंट विद समवन, ठीक है? हम बोलते हैं ना कि प्लीज बियर विद मी, ठीक है? ये वो वाली बियर नहीं है जो पीने वाली है, राइट? बियर विद मी इट मींस टू टॉलरेट समवन, राइट? टू सपोर्ट समवन, टू टॉलरेट समवन एंड टू बी पेशेंट विद समवन, और यू कैन से, राइट? जिसको मैंने बताया था कि
एक एंड्योर करके था, एंड्योर विद, है ना, एंड्योर मतलब किसी के साथ में एंड्योर करना, किसी को टॉलरेट करना, या टू बी पेशेंट विद, या फिर बियर विद, सपोर्ट, ऑल दीज आर द सेम थिंग्स, राइट, सेम मीनिंग्स। फिर आता है गिव वेंट टू, गिव वेंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गिव वेंट टू, इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज। गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एम्फेसाइज। अच्छा, दिमाग में मेरे काफी इंपॉर्टेंट एक अच्छा वर्ड आ रहा है, अल्बीट, ALBEIT। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है, सो प्लीज, ठीक है, जो भी चीज आपको बता रहा हूं, डोंट थिंक कि कोई भी रैंडम कुछ भी बता रहे हैं सर, राइट। अल्बीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवन इफ, इवन इफ, या फिर ऑल्दो, या फिर इवन दो, ठीक है, जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन का थोड़ा सा सेंस आएगा कि अग है तो इवन इफ, ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, अल्बीट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बीट, इवन इफ, ऑल्दो, या फिर इवन दो, इन सब का मतलब होता है अल्बीट, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हमारे ईडियम पे। गिव वेंट टू, इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट वन इज टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, इट मींस टू पे नो अटेंशन। अब कई बार आपको ना ये लिखा मिलेगा पे नो हीड। अगर आपको हीड का मीनिंग पता नहीं है, यू विल बी इन, यू विल बी एट सी, ठीक है, यू विल बी एट सी। तो पे नो हीड, हीड का मतलब ही होता है अटेंशन, याद रखिएगा, हीड का मतलब होता है अटेंशन, ठीक है, HEED, हीड, नॉट वीड, ओके। बोन ऑफ कंटेंशन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। लास्ट एक सेशन में हमने कहा था मीन्स मैटर्स, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स मैटर्स, मीन्स मैटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, बताए। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है टू कंफ्यूज द मैटर्स या फिर टू मिक्स मैटर्स, ठीक है, टू कंफ्यूज मैटर्स या फिर टू मिक्स मैटर्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द इडियम मीन्स मैटर्स, टू कंफ्यूज मैटर्स या मिक्स मैटर्स। बोन ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई का कारण, ठीक है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ओके। थोड़ा सा चलो इसको करके फिर मैं बताता हूं आपको। मुझे आपसे पूछना है डिस्प्यूट या फिर लड़ाई के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताएंगे बाद में। स्टैंड ऑन, ऑन फीट पता है, अपने पैरों पे खड़े होना मतलब इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली। एक मैंने बताया था बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का तो मतलब होता है रैपिडली, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, ओके। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, रैपिडली या फिर कॉन्टिन्यूअसली, और इसका ये काइंड ऑफ इसका अपोजिट हो जाएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इररेगुलरली। ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली, याद रखिएगा, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, सर के ऊपर से चला गया, राइट, ऐसा कुछ समझ लो, कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली। टू कॉल इट अ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा है ये लास्ट वाला, टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, मतलब कि ओके इट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज के लिए काफी हुआ, कि आज का काम अब यहीं पे रोकते हैं और विश्राम करते हैं, इट मींस कि आप उस काम को बंद कर रहे हो, ठीक है। टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग्स, ओके, टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग्स, जो भी या फिर जो भी काम कर रहे हो आप उसको वहां पे पूर्ण विराम लगाना, ओके, या पूर्ण विराम नहीं बोल सकते, वहां पे उसको काइंड ऑफ फुल स्टॉप या कोमा लगाना, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ लड़ाई झगड़े के वर्ड्स,
ठीक है। और बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था बेल, एक मिनट, बेल, ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था बेल, और मैंने इसका मतलब आपको बताया था कि घंटी, इसका मतलब होता है क्वारल, ठीक है, लड़ाई झगड़ा की सेंस में इसकी बात होती है। और ये वर्ड कहां से आया है? रोमन गोडेस, रोमन गोडेस जिसका नाम था बेलोना, ठीक है, बेलोना, ठीक है, और वहीं से ही हमारा ये नाम आया है, बेल रूट वर्ड आया है। और ये बेलोना जो रोमन गोडेस थी, ये लड़ाई या फिर वॉर, ये वॉर की देवी थी, ठीक है। जैसे हमारे भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, वॉर क्राइज होते हैं ना, तो जैसे ज्वाला माँ, ठीक है, तो उनको एक लड़ाई की है ना, वह एक एक प्रतीक माना जाता है, राइट। तो वैसे ही एक रोमन गॉडेस थी, द नेम वाज बेलोना, और वहां से हमारा ये रूट वर्ड निकल के आया बेल, जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अभी इसके जो इडियम्स हैं, सॉरी, इसके जो वर्ड्स हैं, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, बेलिकोस, मतलब ये बेल वर्ड जहां भी लग जाएगा वो लड़ाई झगड़ा की सेंस में ही जाएगा, बेलिकोस, बेलिजरेंट। फिर और हमारे वर्ड्स से पेट्यूलेंट, पेट को रेंट पे दे दिया है ना, तो वो चिड़चिड़ा, है ना, झगड़ालू रहने लगा, ठीक है, पेटुलेंट। ट्रुकुलेंट, ट्रक ड्राइवर थोड़े से इरिटेंट रहते, ट्रुकुलेंट, ठीक है। पीविश, कोई भी दारू पी लेगा तो कैसा रहेगा? पीविश, ठीक है। पग्नेशियस, पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। जो पबजी खेलते हैं काफी ज्यादा एक टाइम पे गेम खेल खेल के इरिटेट हो जाते हैं, राइट, पग्नेशियस। फिर और इसमें जोड़िए कैप्शियस, कोई भी कैप्टन अगर मैच हारता है तो वो कैप्शियस हो जाता है, कैप्शियस मतलब कि वो इरिटेट इरिटेट हो जाता है, कैप्शियस हो गया। ग्राउची हो गया, ठंड के टाइम पे कोई आपको बोलेगा जाओ भैया ग्रोसरी लेके आओ, तो यू विल फील ग्राउची, है ना, यू विल फील इरिटेबल, ओके। ग्राउची हो गया, कैप्शियस हो गया, बेलिजरेंट, बेलिकोस, पेटुलेंट, ट्रुकुलेंट, पीविश, है ना, पग्नेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट रिवीजन इज द ओनली की which will help you to remember the things for a longer period of time, right? There is no other shortcut, there is nothing else which you can do to remember the things, right? चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, you need a proper revision, ठीक है, और प्रॉपर एक इंटरवल पे आपको वो रिवीजन की जरूरत होती है, राइट। चले नेक्स्ट, फिर ये हमारा हो गया टू कॉल इट अ डे, इट मींस टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, टू टेक टू हार्ट्स, टू टेक टू हार्ट्स का मतलब होता है, बताइए, कि कोई भी चीज को दिल से लगा लेना, राइट। तो टू ग्रीव ओवर, उस चीज पर दुख मनाना, शोक मनाना, इट मींस टू टेक टू हार्ट्स। टू स्मेल अ रैट, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। टू बी सस्पिशियस, टू बी सस्पिशियस। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है, जमीन आसमान एक करना, हर चीज ट्राई करना। टू टेक समवन फॉर राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब किसी को धोखा देना। टू चीट समवन या फिर टू डिसीव समवन, ओके। डिसीव के स्पेलिंग देख लो, DECEIVE, ठीक है, डिसीव, ओके। द नेक्स्ट वन इज इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, नॉट इंटेंशनल, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो अनइंटेंशनल, नॉट इंटेंशनल, या फिर एक्साइटेडली, ठीक है। रुस्तम मूवी देखी आपने? रुस्तम मूवी में बोलते हैं इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर, राइट, इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इट मींस दैट वाज नॉट इंटेंशनल, दैट वाज एक्साइटेडली, राइट, या फिर हीट ऑफ द मोमेंट, है ना। फिर आता है अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, a damp squib, it means a disappointing result, okay. Okay, next one is to bite the dust, to bite the dust, it means to be defeated, to be defeated, okay, to bite the dust. To take to one's heel, हमने पहले भी करा, to run away, है ना। To be all at sea, ये आपको सी वाला मैं बता चुका हूं, to be all at sea, it means to be confused, okay, okay, ठीक है। टू बी ऑल एट सी, ये मैं आपको बता चुका हूं, इट मींस लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, राइट, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड बताया था ना मैंने आपको, ऑल एट सी या एट सी,
और एक था हमारा याद नहीं आ रहा, परप्लेक्स वाला क्या था वो, हाँ एट वंस विट सेंड, ठीक है, एट वंस विट, एट वंस विट। आप इनको अगर सुनते भी रहोगे ना, एक दो बार सुनोगे अच्छे से, वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, और जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे तो वो चीजें आपको दिख जाएंगी कि हाँ ये वाला इसका ऑप्शन था, ये वाला इसका आंसर था, ठीक है। इनको आपको कोई बड़ा ज्यादा हार्ड कोर इनको पढ़ना नहीं है, पूरी दिन में लगे पड़े उसी को पढ़ना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको कैसे पढ़ोगे आप? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल धूप निकली पड़ी है एकदम मस्त बढ़िया, राइट, और वहां से बिजली कड़कती है, ठीक है। तो धूप में बिजली कड़कना इट्स वेरी रेयर थिंग, राइट, इट्स वेरी रेयर, ये कभी होगा नहीं शायद, ठीक है। तो एक वो चीज है, या फिर अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब नीले आसमान से बिजली कड़कना, जो कि नीला कब होता है? जब धूप निकलती है, राइट। एंड इन दैट केस या इन दैट सेंस वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि अभी धूप निकली है तो वहां से बिजली कड़केगी, राइट। दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, ओके। टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, ये अपना घर भरना है ना। टू मेक वन सेल्फ रिच इन पोजीशन या फिर इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पोजीशन के मामले में या फिर पैसे के मामले में। बट एक चीज याद रखिएगा, टू फेदर वंस नेस्ट, जब भी ये सेंस, ये हमारा इडियम आएगा, टू मेक वन सेल्फ रिच, तो आगे लिखना एक और चीज ऐड करना, इन एन अनफेयर वे, ठीक है, इन एन अनफेयर वे, ओके। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। जब कोई सर्विस पर होता है और अगर कोई उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, इट मींस दैट पर्सन डाइड इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब ही होता है, ठीक है, टू डाई वाइल इन सर्विस। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू एस्केप या फिर रन अवे, इसका भी मतलब सेम होता है, देख हमने पीछे करा, टू टेक टू वंस हील, ये वाला, ये टू टेक टू वंस हील, इसका भी मतलब होता है रन अवे। और जो हमने अभी पढ़ा, किधर गया, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका भी मतलब होता है टू रन अवे। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, फ्लॉग, फ्लॉग मतलब चाबुक मारना, ठीक है। तो फ्लॉग करना किसी मतलब घोड़े को चाबुक मारना, और मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, अच्छा सॉरी, हाँ, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, ठीक है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब हर एक नर्व को एकदम पूरा काम पे लगा देना, इट मींस टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट्स, टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट्स। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अगेन रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, आंसर थोड़ा सा चेंज करा है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या फिर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन या थिंग, एनीथिंग, राइट। बात समझ आई? ओके, एक बार मैंने फटाफट से आपको रिपीट कर देता हूं एक बार, ठीक है, एक क्विक रिकैप काइंड ऑफ। चलिए, रीड बिटवीन द लाइंस, इट मींस टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अ मैन इन द स्ट्रीट, इट मींस कॉमन मैन, राइट। ब्लड रनिंग कोल्ड, डर जाना, टू बी फ्राइटेंड। प्लेइंग इन द गैलरी, बी फूलिंग द कॉमन मैन, किसी भी कॉमन मैन को मूर्ख बनाना, फूल बनाना। कम आउट ऑफ वंस शेल, अपने शेल से बाहर आना, टू अपीयर सडनली, ठीक है। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, जब भी कोई फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उससे फायदा उठाना, ओके। नेक्स्ट वन इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी धुन खुद बजाना, अपनी शनाई बजाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ, राइट। नेक्स्ट वन देखिए फटाफट से, टू टेक टू वंस हील, टू रन अवे, है ना। एट वंस विट एंड, या फिर एट वंस विट्स एंड, इट मींस ऑल एट सी, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, है ना, chaotic. नेक्स्ट वन इज टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर मींस टू पे नो अटेंशन या फिर टू पे नो हीड, टू पे नो अटेंशन या फिर टू पे नो हीड, हीड मतलब अटेंशन। एट स्नेल स्पेस मींस वेरी स्लोली। द नेक्स्ट वन इज टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, टू डिस्पैरेज समवन, याद रखिएगा कि रन वन डाउन मतलब किसी को नीचे कुचल देना, तो कुचल देना मतलब कि उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, राइट। टू रन वन डाउन, नीचे कुचलना किसी को, काइंड ऑफ रिलेट करवाने के लिए बता रहा हूं, तो किसी की बेइज्जती करना, टू डिस्पैरेज समवन, और डिस्पैरेज का मतलब होता है टू डिसरिस्पेक्ट समवन। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, रिपीट हुआ अगेन,
To face the music, to bear with to bear the consequences. Face the music, it means to bear the consequences. To take someone to task, to scold someone, या फिर to reprimand someone. अब देखो आंसर ऐसे भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, जैसे लिख दिया to take someone to task, आपने सिर्फ मान लो यही पढ़ा है, और ऑप्शन में मिल गया to reprimand someone, और if you don't know the meaning of reprimand, you will be all at sea. ठीक है, you will be confused. तो reprimand का भी मतलब होता है scold करना, किसी को डांटना फटकारना. At once with, puzzled, confused, perplexed. ठीक है, बात समझ आई. Bear with, किसी को झेलना, सपोर्ट करना, या फिर to be patient with, या फिर किसी को endure करना, या फिर किसी को tolerate करना. Give vent to, give vent to का मतलब होता है to emphasize. ठीक है, turn a deaf ear, pay no attention. Bone of contention का मतलब होता है लड़ाई का मुद्दा. ठीक है, matter of dispute. Stand on feet, to be independent. By fits and starts, it means irregularly. एक मैंने आपको बताया था by leaps and bounds, it means rapidly या फिर continuously, और by fits and starts का मतलब irregularly. Okay, over head and ears, completely, very important. Next one is to call it a day, to conclude proceedings. ठीक है, to take to heart या फिर to take to hearts, इसका मतलब to grieve over. To smell a rat, इसका मतलब to be suspicious. To move heaven and earth, जमीन आसमान एक करना, means to make utmost efforts, right? To take someone for a ride, to deceive someone या फिर to cheat someone. Clear? The next one is in cold blood, not intentional या फिर excitedly. Cold blood, not intentional. ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो not deliberately, क्योंकि deliberate का मतलब होता है intentionally और not deliberately मतलब not intentionally. A damp squib, damp squib का मतलब होता है disappointing result. ठीक है, याद रखिएगा इसको. To bite the dust, to face the defeat. To take to one's heel, to run away, to be all at sea, to be confused, right? The last one is a bolt from the blue, unexpected event, जो कि unpleasant भी है at the same time. To feather one's nest, to make money, या फिर to make oneself rich but in an unfair way. ठीक है, गलत तरीके से. वो पोजीशन भी हो सकती है, वो मॉनेटरी टर्म्स भी हो सकती है, राइट? टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस. टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मींस टू एस्केप या फिर टू रन अवे. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स, राइट? सो टू वेस्ट वंस एफर्ट्स. टू स्ट्रेन एवरी नर्व मींस टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स. A bolt from the blue, a bolt from the blue means unexpected problem. Okay, so this is all for today's session. थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा अभी क्लास में अभ्यास 2.0 के बारे में, which has been launched and it's 75 day course. ठीक है, जो कि ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा. If you are interested, you can join. ठीक है, और now what are the features? क्या फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे? ऑफलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी. ठीक है, और सी सेट क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी. ठीक है, पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे अलोंग विद दैट टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप. अभी ये दो चीजें बड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ओके, तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, अलोंग विद दैट आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी जो कि हेल्प करेगी आपको आपकी कमियां इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, सो एक फुल फ्लेजेड कोर्स है एंड जो भी इसमें इंटरेस्टेड है यू कैन ज्वाइन इट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, और जो मेरी साइड से दैट द थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इनफ रिवीजन. ओके, when you are going to enter the examination hall, when you will enter the hall, ठीक है, at that point of time the only thing which will help you that is your revision. Because कितना पढ़ा है वो एक अलग मैटर है, कितना आपने रिटेन करा है और कितना एग्जाम में उस चीज को रिटेन करके रख पाते हो उस प्रेशर में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते काफी ज्यादा सिलेबस है. ठीक है, अराउंड 90-80% सिलेबस उनका कवर्ड होता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट सिलेबस. ओके, तो उसके लिए उनको हाई प्राइस या पूरा एक उनको एक साल पे करना पड़ जाता है उसके लिए, राइट? तो प्लीज रिवीजन पर फोकस करिए, वीकली रिवीजन करिए, फिर मंथली रिवीजन करिए, क्योंकि वीकली रिवीजन करते करते आपकी मंथली रिवीजन जब तक आप पहुंचोगे मंथ तक, एंड उस टाइम पे आपके पास एक अच्छी खासी रिवीजन होगी. ठीक है, दैट्स द ओनली की विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स, आइदर दैट इज योर
कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।